اور جنات کا وار انسان کو تباہ کر دیتا ہے. یہ بدن پہ پھیریں، بدن زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی، جسم ہلکا ہوتا جائے گا، طبیعت میں فرحت ملتی جائے گی اور حیرت انگیز کامیابیاں ملیں گی. انداز بتاتا ہوں کہ کون سی بو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے. یہ سخت جادو ہے تو سمجھ لیں یہ جنات ہے. اگر اس انداز کی ہے تو سمجھ لیں نظر بد ہے. اس گھر کے اندر مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس کا علاج میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ الوظائف جناب حکیم طارق چغتائی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ کرم. سر ماشاءاللہ آپ کے اس وظائف سے، آپ کی روحانی علم سے آپ نے دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. تو آج میں آپ سے دنیا کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کچھ وظائف لینے آیا ہوں تاکہ ان کو بھی بے لوس فائدہ جائے. کچھ آپ کو بھی فیض ملا؟ مجھے ملا تو سر میں آیا ہوں. پہلے اپنی کہانی سنیں پھر میری سنیں. سر آپ کا ایک میں نے کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا سلام علی نوح فی العالمین کے بارے میں. تو یہ جنات کو تڑپا دینے والی آیت ہے اور یہ میں نے ذاتی طور پہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے اور میرا تو واقعہ خیر کافی لمبا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک وظیفے سے اتنا فائدہ ہوا، میری زندگی بدل گئی. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ جو وظیفہ ہے وہ پہنچایا، آپ نے بے لوس بانٹا. عرض کروں گا کہ یہ سلام علی نوح فی العالمین ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کا تعلق دراصل آگ سے ہے. وہ آگ غصے کی ہے، وہ آگ خطرناک شہوت کی ہے، غیر ضروری. وہ آگ جنات کی ہے، وہ آگ جادو کی ہے. وہ خود آگ کی آگ ہے جو موجود آگ ہے، اور وہ آگ جہنم کی ہے، اور وہ آگ قبر کی ہے، اور وہ آگ انتقام کی ہے، وہ آگ کینے کی ہے، وہ آگ بغض کی ہے، وہ آگ نفرت کی. اصل میں یہ ساری آگ ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسانی جسم میں مفہوم ہے. یہ اصل آگ ہے، یہ آگ کا علاج ہے دراصل. یعنی کہ یہ صرف جنات کو تڑپانے کے لیے نہیں ہے سلام علی نوح فی العالمین، اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کے کمال فائدے ہیں. اگر کہیں تو آج میں شاید اس پروگرام میں اس کے بہت سے فائدے آپ کو پیش کر دوں. سر نوازش ہوگی آپ کی، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا غصہ بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر اتنا ہے کہ جو آج تک کنٹرول نہیں ہو سکا، جو یہ چاہتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا علاج کرے کہ رائی کے دانے لے لے، کالے رائی کے دانے ایک مٹھی بھر لے لے. کالی رائی، سرسوں، رایا سیاہ رنگ والا مٹھی بھر، اور مٹھی اس کی اپنی ہو. اس مٹھی کو ہاتھ میں رکھے، نیچے ایک برتن پلیٹ رکھے کہ کچھ دانے اس میں اگر گرتے ہیں تو سنبھالے جائیں، اور اس کے اوپر تصور ہی میں اس بندے کا یا اپنا غصے کا، ہائی بلڈ پریشر کا، اور ٹینشن کا، انزائٹی کا، اسٹریس کا، دنیا کی ناکام علاج ہو جہاں دوائیاں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوں، اس کے اوپر تصور کر کے اس کو سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا شروع کر دیں. اور تصور میں پڑھنا سانس روک کے. اچھا سب سانس چھوٹے سے پھونک ماریں، 40 پھونکیں مارنی ہے. ہر سانس میں کوئی تعداد نہیں، بلا تعداد 40 پھونکیں مارنی ہے. اب کیا کرے گا؟ اس سرسوں کے کو ہاتھ سے ایسے ملے گا اور پہلے عمل کر لے گا 40 بار، پھر ہاتھ سے ملے گا اور مل کے اس پلیٹ کے اندر چھاڑ دے گا. دوسرے دن پھر اسی کو 40 دن اسی طرح پڑھے گا، اسی سرسوں کو اور اسی سانسوں کے ساتھ. تیسرے دن ایسے. یہ 11 دن عمل کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے یا 40 دن کرنا ہے. پہلے دن، تیسرے دن حیرت انگیز اس کے جسم میں رزلٹ، نتائج ملیں گے اور زندگی کی اتنی کامیابی ملے گی کہ وہ کہے گا کہ اب تک میں بھولا کہاں رہا. اور پھر اس سرسوں کو اس کو کہیں دفن کر دیں یا کسی قبرستان میں، ناپاک جگہ نہ ہو، کسی میدان میں، کسی دریا، سمندر، نہر، جھیل میں جہاں پانی صاف ہو، گندا نہ ہو، وہاں ڈال دیں. بس یوں یہ ٹھنڈے ہوں گے اور یوں جسم کے اندر سے ٹینشن نام کی چیز، ہائی بلڈ پریشر نام کی چیز، انزائٹی وغیرہ کی نام کی چیز ختم ہو جائے گی. یہ جو کالے سرسوں لینے ہیں یہ ہر فرد نے اپنے لینے ہیں. بالفرض گھر کا ہر بندہ اپنا کرنا چاہتا ہے یا آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے کریں تو یہ ایک ہی مٹھی کافی ہے 40 دن. اور میرا ایک مشورہ ہے 40 دن کر لیں. یہ تو ایک طریقہ ہوا. آپ نے محترم نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے دوسرے فائدے. یہ دیکھیے میرے پاس ایک کاغذ پڑا ہے، میں اس کاغذ کے اوپر نا ایک عمل دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ میں ایک خانہ بنا رہا ہوں، باکس بنا رہا ہوں. بنا لیا؟ یہ اس وقت میں بیٹھا ہوں میرے لاہور میں. یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے ساؤتھ، یہ جنوب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مشرق، جہاں مشرق کا خانہ ہے اس کے اندر لکھنا ہے
सलामुन। फिर शिमाल की तरफ लिखना है अला। फिर आपने दूसरी सिमत में लिखना है नूह, नूहन फिल, आखिर में लिखना है अल आलमीन, नूहन फिल आलमीन। ये एक नक्श है? अच्छा, इसमें अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, नाम और वालदा का नाम ये लिख लेना है। अब इस नक्श को सिर्फ और सिर्फ आपने नाफ के ऊपर फेरना है, और अगर जिस्म नापाक हो तो ना फेरिए। ये कोई लिख दे, घर का एक फर्द लिख दे, इसको लिख ले। इसको लिखने के बाद इस नक्श को बदन पे फेर के आप तकिए के साथ रख लीजिए। सोते वक्त सिर्फ बदन पे फेर लीजिए, नाफ के ऊपर। अच्छा, एक ही नक्श पूरे घर के सारे अफराद भी अपने बदन पे फेर सकते हैं। एक ही नक्श वो बना लें अपने घर में और सारा घर उसको यूज कर लें? जी मोहतरम। अच्छा, उसको बना के आपने तकिए के साथ रखना है। अब सोच ये है कि घर के अगर 3, 5, 7 अफराद हैं तो किसके तकिए के साथ? घर के किसी बड़े के तकिए के साथ, वालिद है, वालदा है, कोई। इस नक्श को रख दें। रात को, हर रात को सोते हुए ऐसे करना है, और ये सिर्फ 19 रातें करना है। 19 रातें। 19 रातों के बाद क्या होगा? 19 रातों के बाद ये मैं अमल किस लिए बता रहा हूं? वो शख्स जो कहता है मेरे जिस्म पे जादू की इंतहा है, और जादू भी वो है जो जिसने दुश्मन ने चैलेंज किया है कि मेरा कोई दुनिया में है शख्स, बता मैं तेरा जादू तोड़ के दिखाए, चैलेंज किया है। ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का नक्श उन अफराद के लिए जिनके घर में सख्त तरीन जादू है। ये बदन पे फेरें, बदन जंजीरें टूटती जाएंगी, जिस्म हल्का होता जाएगा, तबीयत में फरहत मिलती जाएगी, और हैरत अंगेज कामयाबियां मिलेंगी, और आप हैरान होंगे। 19 दिन का ये अमल उसकी जिंदगी में रंग और खुशियां घोल देगा। इसके बाद इस कागज को कहीं पाक जगह पे दफन कर दें, किसी क्यारी में, किसी जगह में दफन कर दें इस कागज को जो नक्श लिखा हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो फिर ये महीने, 2 महीने के बाद फिर ये अमल कर लें 19 दिन वाला, फिर चाहे फिर कर लें। लेकिन एक चीज है कि 19 दिन के बाद इसका हदिया बहुत जरूरी है। वो बड़ा गोश्त है, बगैर हड्डी के, बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के, हस्ब तौफीक चील कवों को डालना बहुत जरूरी है, घर के हर फर्द की तरफ से या पूरे घर की तरफ से एक ही। तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? तौफीक ताक में होनी चाहिए, जुफ्त में? 1.25 किलो हो तो बेहतर है, और किसी की अगर 1.25 किलो को इस्तेतात नहीं, 1.25 पाव हो, जो मौजूदा तकरीबन 300 ग्राम बनता है। कोई इंसान जिस पे जिन हो, जादू हो, या उसको जहनी मसला हो, वो खुद से उसको कैसे चेक करे? क्योंकि किसी और के पास जाएं तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं हमारे, कि ये जो नक्श है, ये नक्श खुद इसका हल है। इसका मैं एक तरीका बताता हूं। इसका तरीका यह है कि आप इस नक्श को लिख लें बिल्कुल इसी शक्ल में। अब इसको मलने वाला अमल नहीं है, इसका नक्श का दूसरा इस्तेमाल बताता हूं। ये नक्श है, इस नक्श को सिर्फ 3 बार ऐसे मलिए, सिर्फ 3 बार आप मलेंगे। उसके बाद इसको सूंघेंगे। आप पहले अपने हाथ की बू को समझ जाएंगे कि मेरी ये फितरी हाथ की बू है, फिर मलेंगे, फिर आपकी बू बदलती चली जाएगी। अब मैं बू का अंदाज बताता हूं कि कौन सी बू किस चीज की निशानदाही कर रही है। अगर तो आपके जिस्म में जली हुई बू आए, जैसे कोई चीज चल रही है, हल्की सी वो जली सी बू, और बाज़ औक़ात बहुत तेज आती है, तो आप समझ जाएं ये सख्त जादू है, और ये जादू जो है मुझ पे मुसल्लत किया गया है। और अगर आपके जिस्म से बू आए और वह जली हुई ना हो, ऐसी हो जैसे पानी सड़ जाता है, पानी को बोतल में बंद करके रखें तो उसको ढकना खोलें तो एक बदबू सी होती है पानी की। मेरा लफ्ज़ पानी का याद रखिएगा। अगर पानी की बदबू आप में से हमारे सुनने वालों ने नहीं सूंघी तो पहले पानी की बदबू को चेक करें, ठीक है? तो अगर पानी की बदबू की शक्ल में है तो समझ ले ये जिन्नात है। और अब रही नजरे बद और रही बीमारी, 2 चीजें और भी बताऊंगा। अगर आपकी बू इस अंदाज की है जिस अंदाज में बगल में हाथ डालें कुछ देर के लिए, तो बगल की भी एक खास बू होती है, बगल की एक खास बू होती है। अगर उस अंदाज की है तो समझ लें नजर बद है, और अगर बू बिल्कुल नहीं है समझ लें बीमारी है। यह अमल आप कुछ दिन मुसलसल करें, आपकी बू बदलती चली जाएगी। उसके बाद उस नक्श को फिर आप कहीं दफन कर दें, फिर उस असल बीमारी का इलाज शुरू करें। जादू है, जिन्नात है, नजर बद है या बीमारी है। इस आयत से हम अपनी किस्मत को, अपने कारोबार को और अपनी औलाद को, इन चीज़ों को भी हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसकी वजह है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये असल में आग का इलाज है, और हमारी ज़िंदगी को, हमारे रिस्क को आग खा जाती है। हमारी किस्मत, नसीब, मुकद्दर, बख्त, इन चीज़ों को आग खा जाती है।
नजर बद की शक्ल में, जादू की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में, कीना, बुग्ज और नफरत की शक्ल में नजर बद इंसान को गिरा देती है, और जादू का वार इंसान को बर्बाद कर देता है, और जिन्नात का वार इंसान को तबाह कर देता है। आप इसका ऐसा करें। आप फिर एक अगली चीज बताऊंगा। अब ये देखिए, ये कलम है और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, एक लाइन, फिर जेर जबर के बगैर लिखिए, और घुलने वाले, जैसे ये पेन है, घुलने वाली स्याही हो, ऐसी स्याही ना हो जो पानी में ना घुले, घुलने वाली स्याही हो। और अगर ये जाफरान से लिख लें सबसे अच्छी बात, जाफरान मयसर नहीं जर्दे के रंग से लिख लें उससे अच्छी बात है। मजबूरन स्याही से लिखें, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि जर्दे के रंग से लिख लें, जाफरान से लिख लें। ये 40 बार यही आयत इस कागज पे लिखें, 40 बार, और इस कागज को बोतल में डालें, और बोतल में डाल के इसका पानी सारा घर पिए। इसी से नहाना नहीं है, पीना है। आटा गूंदें, हंडिया में डालें, चाय में, दूध में, पीने में, मशरूब में, कोई चीज पकानी है उसमें यही पानी डालें। अच्छा, ये कागज पिघल जाए, घुल जाए, हर्फ घुल जाए, लेकिन पानी बढ़ता चला जाए, और पानी को बढ़ाते जाए। ये पानी जिस घर में जाएगा, अब इसके कुछ फायदे में आपकी खिदमत में चाहे तो बता दूं। जी जी बिल्कुल जी, ये पानी जिस घर में जाएगा, ये पानी जिस घर में जाएगा, उस घर से आग खत्म हो जाएगी। नफरत की आग, झगड़ों की आग, तलाक की आग, नाचाकियों की आग। अच्छा, हर वक्त की छोटी छोटी बातों से बिगड़ जाना, और घर में बच्चों के मसाइल, शोहरा या बीवी, बीवी है या शोहर, नंदे हैं, सौकन है, वगैरह वगैरह, इसके मसाइल में आग लगी है घर में। जिस घर में बीमारियां और मेडिकल स्टोर बना हुआ है, और जिस घर में हर वक्त तकलीफें, मुश्किलात हैं, या जिनके हादसे बहुत होते हैं, या जिनके ऊपर वार बहुत होते हैं, या जिस घर के अंदर मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, उसका इलाज। और सर एक चीज़ है जो नज़र नहीं आती, और उसका ताल्लुक नज़र से ही है, यानी कि बुरी नज़र, बद नज़र जिसे हम कहते हैं। अच्छा, जो ये चाहता है कि उस पर कभी नजर बद ना लगे, दुश्मन का हसद असर ना करे, दुश्मन की तरफ से नाकामियों के अज़ाइम ना हो, और या उस पर कोई जादू की चीज का वार असर ना करे, मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे बड़ों की तरफ से इजाजत है, बहैसियत डाकिया के, कि वो सारा दिन ये वजू बेवजू यही आयत पढ़े, सलामुन अला नूहिन बिल आलमीन, बहुत कसरत से पढ़े। चंद दिनों में रिजल्ट, उसकी बरकत, उसके कमालात देखेंगे। मेरी तरफ से इजाजत है। सर ये जो इजाज़त वाला सिलसिला है, लोग बिना इजाज़त के भी पढ़ने लग जाते हैं, या वो कुछ लोग कहते हैं कि इजाज़त लाजमी है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इजाजत की निस्बतें असल में बड़ों से होते सहाबा, आले बैत, इनसे होते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिब्रील और अल्लाह के साथ निस्बत जाती है। इसकी निस्बतें जाती हैं, और निस्बतों की बरकतें होती हैं, और निस्बतों में बरकत होती हैं, और निस्बतों की बरकत